Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's computer network we will be covering the concept of data rate limits and performance. We will be seeing what are the performance issues which a signal mainly faces. So if you have not watched the video on our previous lectures based on the signal, like types of signal, characteristics of a signal and many more such concepts we have already covered, then do go watch there. I will provide the link in the description and in the I button as well. So we will be starting with the data rate limits. See, one of the main consideration जो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि how much fast we can make our data send over a channel. And since we are talking about digital signal, the unit consider over here will be bits per second. तो कितनी स्पीड में हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफर करवा सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है, द डेटा रेट जो होता है डिपेंड करते हैं तीन फैक्टर के ऊपर. बैंडविड्थ कितना अवेलेबल है, बैंडविड्थ इज इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज और in terms of bits per second, that we will be seeing in the later slide. Then the level of signal, like it is a 2 level signal, 4 level, 8 level, or the level, basically the level of signal, kitne level ka signal hai. The level basically over here means the number of bits we can transmit over a period of time. Then another important consideration is the quality of channel. See, if the quality of the channel is high, then the speed may be very much high. Because there is a low level of noise in a good quality of channel. So theoretically seeing this concept, then data rate we can see them one by one in a noiseless as well as a noisy channel. So there are two theoretical formula given by Nyquist and Shannon, which we will be seeing respectively for a noiseless as well as noisy channel. Talking about the noiseless channel, the Nyquist, the person, he has given a bitrate formula. Bitrate over here means the number of bits which we can send in 1 second. So to find out the maximum bitrate according to Nyquist formula, and over a noiseless channel the formula is bitrate equals to 2 multiplication into bandwidth into log 2L. And seeing bandwidth over here, bandwidth का मतलब है bandwidth channel का हम लोग bandwidth की बात करने वाले, means the maximum transmission capacity of the channel. L means the level of signal, कितने लेवल का हमारा सिग्नल है. Just from this particular diagram we will try to understand कि लेवल का मीनिंग क्या है. देखो, अगर आपका जो सिग्नल है वो 2 लेवल है, 2 लेवल सिग्नल का मतलब होता है कि हम लोग ट्रांसमिट करते टाइम बिट्स को 1 by 1 ही सेंड कर पाएंगे. इफ योर सिग्नल इज अ 4 लेवल सिग्नल, एट अ टाइम हम लोग 2 बिट्स एक साथ सेंड कर पाएंगे टू द रिसीवर. इफ योर सिग्नल इज अ 8 लेवल सिग्नल, देन वी कैन ट्रांसमिट 3 बिट्स concurrently. And ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, we can think of it in a formula way. See, 2 raised to n equals to L. L means over here level. अब देखो, अगर जो लेवल्स होते हैं वो 2 raised to power के फॉर्म में रहते हैं. ऐसे नहीं है कि हम लोग 13 लेवल रखें या 14 लेवल, नहीं. तो कैसे होगा? अब यहाँ पे अगर हमारा जो लेवल है, इट इज अ 64 लेवल सिग्नल. 64 लेवल सिग्नल है. अब ये 64 को अचीव करने में हमें 2 को कितने पावर से रेज करना पड़ेगा, मीन्स एल को यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें वैल्यू में कि हमें 64 है. तो ओवर हियर वी विल हैव टू प्लेस 6 बिकॉज 2 raised to 6 is 64 एंड हेंस हम एक टाइम पे एन पे हम लोग कितने बिट्स साथ में सेंड कर पाएंगे. तो लेवल ऑफ सिग्नल बेसिकली डिटरमाइन करता है आपके कितने बिट्स एक साथ में सेंड होंगे. सो एल का मीनिंग आपको पता चला. बैंडविड्थ क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ चैनल. देन बिट रेट वो हम लोग अभी फाइंड ही करने वाले. बिट रेट मींस द नंबर ऑफ बिट्स व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड इन 1 सेकंड. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा दिख रहा है, सो हम लोग इसमें में ऐसा सोचते हैं कि अगर एल की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इंक्रीज कर दें, देन हमारा मींस नंबर ऑफ लेवल सिग्नल लेवल से उसे डायरेक्टली इंक्रीज कर दें, तब हमारे पास बिट रेट की वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम निकल के आएगी. बट थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली लिमिट है. लिमिट कैसे? अगर हम नंबर ऑफ सिग्नल लेवल को एक्सट्रीम लेवल पे आगे बढ़ा दें, देन देयर विल बी अ बर्डन जो रिसीवर को फेस करना पड़ सकता है. हो सकता है कि रिसीवर के इतना कैपेसिटी नहीं हो कि इतना बिट रेट से वो डेटा को एक्सेप्ट कर सके एंड प्रोसेस कर सके. तो अगर सिग्नल का लेवल छोटा है, जस्ट लाइक हम 2 रख सकते हैं, देन रिसीवर को सिर्फ डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन 0 and 1. अगर सिग्नल का लेवल 64 है, मीन्स नंबर ऑफ बिट्स एक टाइम पे हम लोग सेंड कर पाएंगे 6 बिट्स. 2 raised to 6 is 64 ना. तो उस आपका जो रिसीवर होगा उससे उतने नंबर ऑफ बिट्स को साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो एक तरीके से बर्डन पड़ेगा. अब अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं द डेटा इन दिस फॉर्मेट, तो एक बिट करके आगे फॉरवर्ड होने वाला है. ओके, एंड if at a time 6 bits will be sent,
एंड मल्टीपल टाइम वो सेंड होने वाला है, तो रिसीवर को उनको डिफरेंशिएट करने में उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ सिग्नल को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बिट रेट तो इंक्रीज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि लिमिट है हमारे पास कि रिसीवर अगर उसे हैंडल नहीं कर पाया तो इश्यू वाली बात हो सकती है. अदर वर्ड्स में बोला जाए तो अगर हम लोग लेवल ऑफ सिग्नल इंक्रीज करेंगे, वो हमारे रिलायबिलिटी या ट्रस्टेबिलिटी ओवर द चैनल, ओवर द सिस्टम एंड ओवर द डेटा डिक्रीज कर देगा या फिर रिड्यूस कर सकता है. नॉइजी चैनल, अभी हम लोग ने नॉइजलेस के बारे में चेक किया. नॉइजी चैनल के बारे में अगर बात की जाए तो दिस फार्मूला वाज गिवन बाय शैनन, क्लाउड शैनन, तो 1944 में दिया गया था. देखो एक चीज, कोई भी चैनल जो होता है हमेशा नॉइजलेस नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ नॉइज वहाँ पे रहेगी. नॉइजलेस चैनल जो हम लोग प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा, उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं रहेंगे जो हमारे सिग्नल को इम्पैक्ट नहीं करेंगे. नहीं, सी एक्सटर्नल फैक्टर विल बी दैट विल इम्पैक्ट योर सिग्नल, बट टू अ स्मॉल लेवल. नॉइजलेस में बहुत कम ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके सिग्नल को इम्पैक्ट करेंगे. एंड टॉकिंग अबाउट द चैनल विच इज नॉइजी, तो क्लाउड शैनन ने 1944 में हमें फॉर्मूला दिया था, which we can see in this way: capacity equals to bandwidth into log 2 and in bracket 1 plus SNR. The concept of SNR has already been covered in our previous video, so अब वो वीडियो जाके देखो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा. अब इन दिस फॉर्मूला बैंडविड्थ जो है हमारा चैनल का बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट करता है. अब SNR का मीनिंग यहाँ पे है सिग्नल टू नॉइस रेशियो. इफ डिफाइनिंग SNR, so we can define it in this way: the average signal power upon average noise power. So और इसे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो SNR is the ratio of what is to be sent upon what is not to be sent. कैपेसिटी यहाँ पे है कैपेसिटी ऑफ द चैनल इन बिट्स पर सेकेंड. उसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा सेंड करने का, दैट विल बी डिफाइंड बाय आवर कैपेसिटी. हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट का हम लोगों ने L दैट इंडिकेट सिग्नल लेवल यूज नहीं किया. तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कितने भी लेवल का सिग्नल यूज करें, हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम डेटा रेट जो अचीव कर सकते हैं वो कैपेसिटी ऑफ द चैनल का ही होगा, उससे ज्यादा का नहीं अचीव कर पाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज परफॉर्मेंस. सी हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स देखे जिससे हम लोग सिग्नल डेटा को ट्रांसमिट करवा सकते हैं ओवर द चैनल, एंड कैसे वो बिहेव करता है सिग्नल वो भी हम लोगों ने चेक किया. लाइक क्या क्या इशू एक सिग्नल को नॉइस के थ्रू फेस करने पड़ सकते हैं. अब एक चीज और हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो नेटवर्क है, उसका परफॉर्मेंस को हम लोग इवेल्युएट करें कि हाउ गुड आवर नेटवर्क इज ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन. पहला चीज इसमें आता है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ को हम लोग दो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. फर्स्ट बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज एंड बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकंड. टॉकिंग अबाउट हर्ट्ज हम लोग ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. जस्ट विल टेक अ रिविजन ऑफ दिस. व्हेन टॉक्ड अबाउट बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, बैंडविड्थ जो होता है हर्ट्ज के इसमें, इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. बेसिकली डिफाइनिंग इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इन अ कॉम्पोजिट सिग्नल एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है हाई है, इट इज 5000 एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है सिग्नल का, इट इज 1000, देन बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज विल बी 4000 हर्ट्ज. तो एग्जांपल यहाँ वी हैव टेकन कि बैंडविड्थ ऑफ अ सब्सक्राइबर टेलीफोन लाइन इज 4 किलोहर्ट्ज, मींस उतना उसका बैंडविड्थ होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज हमें प्रोवाइड करता है. एंड इन बिट्स पर सेकंड बैंडविड्थ जो होता है, वी कैन रेफर इट एज नंबर ऑफ बिट्स दैट अ पर्टिकुलर चैनल, एक पर्टिकुलर लिंक या फिर एक नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकता है. इन शॉर्ट, द मैक्सिमम स्पीड दैट नेटवर्क प्रोवाइड अस, that link or channel provide us. For example, if one says that a bandwidth of a fast Ethernet, it is a maximum of 100 Mbps, उसका मतलब ये होता है कि वो नेटवर्क 100 Mbps का स्पीड हमें प्रोवाइड करता है. बट प्रोवाइडिंग अ स्पीड ऑफ 100 Mbps डज नॉट मीन कि हम लोग उतने ही स्पीड से वहां पे कर पाएंगे. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सेंडर. एक ओवरऑल इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समराइज कर ले. सी बैंडविड्थ इन हर्ट्ज अगर देखा जाए तो इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल. तो और हम लोग अगर देखा जाए तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट अ चैनल कैन पास, कितना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वो चैनल पास कर सकता है, वी कैन से दैट. इन बिट्स पर सेकंड इट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ बिट ट्रांसमिशन इन अ चैनल और अ लिंक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द थ्रूपुट. थ्रूपुट क्या होता है? देखो, एट अ फर्स्ट ग्लांस अगर हम लोग देखें तो हमें बैंडविड्थ और थ्रूपुट दोनों सेम दिखेंगे. जस्ट विथ एन एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू विल गेट अ मोर क्लियरिफिकेशन बैंडविड्थ और थ्रूपुट में कितना डिफरेंस है. ओके, सो
थ्रूपुट जो होता है इट मेजर्स हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड द डेटा ओवर अ नेटवर्क, कितने फास्ट हम लोग एक्चुअल में डेटा को सेंड कर सकते हैं। इन माय प्रीवियस स्लाइड इन दिस लेक्चर ओनली आई हैव टॉक कि हमें अगर एक इथरनेट 100 Mbps का स्पीड दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उतना 100 Mbps को यूज ही कर पाएंगे, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंडर्स कैपेसिटी, कि उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है, वो 100 Mbps को सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, इतने स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर देगा, नहीं। जस्ट ऐसे ले लो, अगर आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर है वाईफाई का, इट प्रोवाइड्स यू विद 10 Mbps ऑफ डेटा, आपको 10 Mbps का स्पीड प्रोवाइड किया, इट मीन्स उसने बैंडविड्थ दे दिया आपको उतना, बट वो आपके डिवाइस के कैपेसिटी के ऊपर है कि आपका डिवाइस उसे कितने मैक्सिमम स्पीड तक यूटिलाइज करेगा। आपको 100 Mbps 10 Mbps देने के बाद आपका जो डिवाइस होगा उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 Mbps तक यूज करेगा, 5 Mbps तक करेगा, लेकिन 10 तक वो नहीं यूज कर पाते। एंड in this way we can think of bandwidth as well as throughput. So 10 Mbps was my bandwidth given to me by my service provider, and throughput, which was the actual usage of my device, it was throughput. एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। देखो, अगर आपका हाईवे है, वो आपने इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 100 कार्स पर मिनट वहां से ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट अनदर, लेकिन अगर कंजेशन हो गया रोड पे, कुछ ट्रैफिक हुआ, तो ये ही रिड्यूस होकर 100 कार्स पर मिनट तक भी आ सकते हैं। तो बैंडविड्थ मेरा हो गया यहाँ पे, जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना उसका 1000 कार्स पर मिनट, लेकिन कितना जा पा रहा है, इट इज 100 कार्स पर मिनट। तो इसी को वे को हम लोग बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सी, एक नेटवर्क है जिसका बैंडविड्थ है 100 Mbps, लेकिन वो एक एवरेज में वहाँ पे पास कर रहा है फ्रेम्स को, इट इज पासिंग 12,000 फ्रेम्स पर मिनट, एंड वही हर फ्रेम जो होता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा बिट्स कैरी कर रहा है, ऑन एवरेज 10,000 बिट्स आर बीइंग कैरीड बाय दैट ईच फ्रेम। हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे थ्रूपुट को, कितने फ्रेम सेंड हो रहे हैं पर मिनट, मल्टीप्लीकेशन, हर एक फ्रेम कितना बिट्स सेंड कर रहा है, साथ में कितना बिट्स लेके जा रहा है, डिवाइडेड बाय 60 किस लिए 60, बिकॉज वी आर टॉकिंग इट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, एंड इसे अगर कन्वर्जन करना है हमें तो 60 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड्स में। हम लोग सेकेंड्स में आंसर इसका फाइंड आउट करने वाले हैं। ये जो सब डेटा है 12,000 पर मिनट का है, पर मिनट में 12,000 फ्रेम्स जा रहे हैं, एंड हेंस डिवाइड करना पड़ेगा 60 से टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। सो आफ्टर कन्वर्टिंग वी विल गेट ऑलमोस्ट अराउंड 2 Mbps which will be my throughput. तो नेटवर्क बैंडविड्थ जो था 10 Mbps का था, लेकिन जो थ्रूपुट है, जो एक्चुअल यूसेज में कर पाऊंगा, इट विल बी 2 Mbps. नेक्स्ट टॉपिक इज लैटेंसी और डिले। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा अदर फैक्टर्स देखेंगे, 4 बेसिकली कंपोनेंट्स देखेंगे लैटेंसी और डिले के। देखो, लैटेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर डिले को, दोनों सिनोनिम वर्ड्स है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी, हाउ लॉन्ग अ पैकेट टेक्स टू अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट बिट वाज सेंट बाय द सोर्स और सेंडर। सोर्स से या सेंडर से जो फर्स्ट बिट आया था उसके बाद से लेके और कंप्लीशन ऑफ मैसेज, जब तक कंप्लीट मैसेज आपके डेस्टिनेशन या रिसीवर तक नहीं पहुंच जाता, उसके बीच का जो टाइम है, दैट इज योर लैटेंसी और डिले। वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे। लैटेंसी और डिले को हम लोग बेसिकली ऐसे समझते हैं कि कितना डिले हो रहा है एक मैसेज को सेंड करने में, एंड इन दैट वे बेसिकली ये इसका डेफिनेशन है। एंड लैटेंसी जो होता है 4 कंपोनेंट्स है, ठीक, क्या क्या है, वी विल सी देम वन बाय वन। प्रोपोगेशन टाइम है, ट्रांसमिशन टाइम है, क्यूइंग टाइम एंड प्रोसेसिंग डिले। प्रोसेसिंग डिले इट इज आल्सो कॉल्ड एज जिटर। So let's see them one by one. These all 4 components. Propagation time क्या होता है? Propagation time जो होता है, it measure कि आपका bit travel कर रहा है from source to destination. कितना time आपके bit ने लिया है, एक single bit ने लिया है for traveling from source to destination is the propagation time. जब मैं आपको ये बोलूँ कि आपने suppose एक जगह है from मुंबई टू दिल्ली, आपने कितना टाइम लिया मुंबई से दिल्ली आने में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे टाइम को? डिस्टेंस बाय स्पीड को। ठीक, आपका डिस्टेंस पहले होना चाहिए, देन आपके पास स्पीड होना चाहिए कि कितने स्पीड से है। ज़्यादा स्पीड से है तो कम टाइम लगेगा, एंड वहीं पे अगर कम स्पीड पे है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस भी आपके पास होना चाहिए एंड आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए टू फाइंड आउट द टाइम। नॉर्मल इन टर्म्स अगर हम लोग देखें तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो in the network world also we will need this factor to find out the propagation time. We will need the distance, कितना distance है आपके 2 पॉइंट्स के बीच में, एंड कितने स्पीड है आपका चैनल का, वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोपोगेशन टाइम कितना निकलेगा। सो प्रोपोगेशन स्पीड क्या है? देखो, प्रोपोगेशन स्पीड इट डिफाइंस कि
आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो कितने स्पीड से जाएगा। अब ये भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, आपका मीडियम क्या है जिसके थ्रू सिग्नल आगे प्रोपोगेट होगा, सेकेंड आपका सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दोनों ही फैक्टर्स अगर अच्छे हैं देन योर प्रोपोगेशन स्पीड विल बी हायर। जस्ट थिंक ऑफ इट इन दिस वे, अगर आपका फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज का तो एक सेकंड में आपका सिग्नल 100 हर्ट्ज साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है। लेकिन अगर आपका जो चैनल है, आपका जो मीडियम है, वो उसका कैपेसिटी है सिर्फ 50 साइकिल्स को हैंडल करने का, तब वो फ्रीक्वेंसी आपका हाई होने पे भी कोई यूज नहीं आएगा। तो मीडियम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विल बी द टू फैक्टर दैट विल अफेक्ट द प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ योर सिग्नल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का। वहीं पे अगर थोड़ा एयर में आ जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, पूरा का पूरा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। लाइक एयर में हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। वहीं पे अगर हम लोग केबल्स के फॉर्म में लाइट को ट्रैवल करवाएं लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, तो वहाँ पे और थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए जो मीडियम आप चूज करें वो उसके ऊपर आपका प्रोपोगेशन स्पीड एंड प्रोपोगेशन टाइम डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है फिर देखो, डेटा कम्युनिकेशन में हम लोग सिर्फ एक बिट को सेंड नहीं कर रहे, हम लोग पूरा का पूरा मैसेज सेंड कर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा मैसेज जो होता है n नंबर ऑफ बिट्स को कंटेन करेगा। तो जो फर्स्ट बिट जो होता है वो सपोज चला गया, हो सकता है कि जो लास्ट बिट हो जाने वाला है वो भी उतना ही सेम अमाउंट ऑफ टाइम ले जितना फर्स्ट बिट ने लिया था। बट जो फर्स्ट बिट गया था जो लास्ट बिट जाने वाला है, उन दोनों के बीच में बहुत टाइम है, and hence we can say there is a time between the first bit leaving the sender and the last bit arriving at the receiver। तो बहुत टाइम होगा, तो वो कैलकुलेट करने से ऑल्सो नेसेसरी। कैसे करें? फॉर्मूला, ट्रांसमिशन टाइम मैसेज का साइज क्या है अपॉन बैंडविड्थ क्या है हमारे चैनल का। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा। तो फर्स्ट बिट जो होता है हमारा नॉर्मली फर्स्ट बिट है अर्लियर जाएगा, लेकिन जो लास्ट बिट है लास्ट जाके लास्ट पे पहुंचेगा, तो पूरा का पूरा टाइम फाइंड आउट करना नेसेसरी है। तो पहले अगर आपके पास मैसेज का साइज है एंड बैंडविड्थ है आपके पास, देन बैंडविड्थ मींस बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, तो उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो ट्रांसमिशन टाइम। नेक्स्ट इज योर क्यूइंग टाइम विच इज द थर्ड कंपोनेंट इन लैटेंसी। द टाइम नीडेड फॉर ईच इंटरमीडिएटर और एंड डिवाइसेस टू होल्ड द मैसेज बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। आपका जो मैसेज होता है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी या सेंडर से रिसीवर डायरेक्टली नहीं जाता, बीच में कुछ इंटरमीडिएट डिवाइस होंगे जो उसे हॉप बाय हॉप आगे फॉरवर्ड करेंगे, और जैसे ही वो उस इंटरमीडिएट डिवाइस पे आपका पैकेट आता है या फिर मैसेज आता है तो वहाँ पे वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है मीन्स सपोज मैसेज ए से बी सेंड होता है, ए ने बी को मैसेज सेंड किया, अब यहाँ पे एक राउटर है, तो मैसेज का जो फ्लो है वो इस वे में यहाँ से राउटर 1 राउटर 2 एंड देन टू बी, तो ये R1 लिख देता हूँ एंड R2। तो सपोज ए ने सेंड कर दिया, अब जो एक पैकेट होता है उसमें मेनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, लाइक सेंडर का एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, सेंडर का एड्रेस क्या है, देन रिसीवर का एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है दोनों साइड का, ऐसे ही बहुत ज्यादा अलग अलग इंफॉर्मेशन रहते हैं, एंड हेंस हम लोग डायरेक्टली पैकेट ऐसे सेंड नहीं कर सकते फ्रॉम ए टू बी। हमें इंटरमीडिएट डिवाइस लगेंगे जो उस पैकेट को हॉप बाय हॉप आगे फॉरवर्ड करने वाले। तो जैसे ए से मैसेज गया फ्रॉम ए टू बी, बीच में पहले जाएगा R1 राउटर 1 के पास, तो यहाँ पे जाके वो मैसेज चेक होगा, उसका सोर्स एड्रेस एंड मीन्स एक तरीके से प्रोसेसिंग होगा, देन ये R1 उसे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा, तो नेक्स्ट जाके अगेन राउटर 2 है, वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होगा, तो बीच में थोड़ा टाइम लग रहा है एंड दिस टाइम इज कॉल्ड एज क्यू टाइम। तो ये मान लो कि अगर ये तो हो गया था एक मैसेज, तो पैकेट्स के टर्म में अगर इसे बोला जाए तो अगर हमारा मैसेज है वो 5 पैकेज के फॉर्म में डिवाइडेड है, तो हर एक पैकेज जो है वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा वहां पे प्रोसेस होने में एंड देन आगे फॉरवर्ड होगा। तो जब तक एक पैकेट फॉरवर्ड नहीं होता और नेक्स्ट वाले को चांस नहीं मिलेगा, तो ये हो जाता है हमारा क्यू। एक क्यू बना रहे हैं हम लोग इसमें, जिसमें हर एक पैकेट को थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिफोर द इनिशियल वन उससे आगे जो है वो सेंड ना हो जाए। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मैसेज, वी आर विथ मेनी मैसेजेस, हर एक मैसेज को वेट करना होगा। और ये क्यूइंग फैक्टर जो है एक फिक्स फैक्टर नहीं है, ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क पे लोड कितना है, ट्रैफिक ज्यादा है तो क्यूइंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है नाम से यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, बैंडविड्थ और डिले का प्रोडक्ट। इन शॉर्ट अगर इसे देखा जाए, हम लोग फ्यूचर चैप्टर्स में इसे आगे चेक करने वाले हैं कि बैंडविड्थ और डिले है क्या। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक लिंक का
ए से पॉइंट बी या फिर सेंडर से रिसीवर एक लिंक बन जाएगा, उनके उस लिंक का एक परफॉर्मेंस मैट्रिक है हमारे पास विच इज बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में हम लोग इसे और डिटेल में कवर करेंगे, बट एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जिससे आपको आइडिया है कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है क्या। देखो, इफ डिफाइनिंग बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल अप द लिंक। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लिंक बनेगा दैट विल सी इन द कमिंग डायग्राम। तो उस लिंक को कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे उस लिंक को फिल करने में। सो एक एज्यूम कर देते हैं, एक एजम्पशन लगाते हैं कि हमारे पास एक बैंडविड्थ है, एक नेटवर्क का एक बैंडविड्थ है, लिंक का एक बैंडविड्थ है, इट इज 1 बिट्स पर सेकेंड। हालांकि थोड़ा अनरियलिस्टिक है लेकिन समझने के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इजी पड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिले टाइम है इट इज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड हमारे पास डिले टाइम दिया गया। इट इज ऑल्सो अनरियलिस्टिक, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक इट एज दिस। सो वी वांट टू सी व्हाट बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट मीन्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर बैंडविड्थ है, अगर डिले दिया है तो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है क्या, चेक करते हैं फ्रॉम द डायग्राम। सो यहाँ पे देखो हमारे पास एक सेंडर है एंड वी आर गिवन विद अ रिसीवर। बैंडविड्थ क्या दिया, 1 bps मीन्स 1 बिट्स पर सेकेंड। तो 1 बिट पर सेकेंड हमारा बैंडविड्थ है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन कैपेसिटी बोल सकते हो इसे। नेक्स्ट इज डिले विच इज ऑफ 5 सेकेंड। नेक्स्ट इज बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। तो एज आई सेड प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो बैंडविड्थ इनटू डिले मीन्स 5 बिट्स। तो अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो विद दिस बैंडविड्थ एंड विद दिस डिले हमें 5 बिट्स लगेंगे टू फुली कवर द लिंक, टू फुली फिल द लिंक बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। चेक करते हैं, देखो क्या बैंडविड्थ दिया, 1 bps मतलब 1 बिट्स पर सेकेंड सेंड होगा। तो फर्स्ट सेकेंड पे आफ्टर 1 सेकेंड हमारा फर्स्ट बिट जा चुका है। आफ्टर 2 सेकेंड फर्स्ट ऑलरेडी ट्रांसमिशन में, सेकेंड जाने वाला है तो ट्रांसमिट होगा। आफ्टर 3 सेकेंड 3 बिट्स हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आफ्टर 4th सेकेंड तो हमारे पास 4th बिट भी आ जाएगा अब यहाँ पे लिंक में। सो आफ्टर 5th सेकेंड हमारा 5th बिट भी आ चुका है। अब देखो इसे ऐसे समझो कि फर्स्ट बिट इज गोइंग टू बी रीच, सेकेंड वो भी ऑन द वे, थर्ड 4th एंड 5th अभी ट्रांसमिट हुआ है। द लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर हमें टोटल 5 बिट्स लगे इसको पूरा कवर करने में, दैट इज योर बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। कितने बिट्स हमें लगेंगे टू फुली कवर द लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज डिफाइंड बाय योर बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। तो अब जब ये फर्स्ट बिट पहुंचेगा उसके बाद ये लिंक, इस पर्टिकुलर लिंक में 4 बिट रह जाएंगे। तो अगर कोई दूसरा बिट होगा इसके बाद वो ट्रांसमिट होगा तो वो 5th वाले की जगह ले लेगा, मीन 6th वाला जो 5th वाले की जगह पे आ जाएगा। लुकिंग एट द फिगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक प्रोडक्ट विच इज 1 into 5 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स हमें देगा जो पूरे के पूरे लिंक को एक टाइम पे कवर कर सक देंगे। एंड 5 से ज्यादा बिट्स एक टाइम पे इस लिंक में हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हमें 6th वाला बिट फॉरवर्ड करना है तो पहले इन 5 में से एक कम होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट वाला वो रीच होना चाहिए एंड देन हम लोग 6th वाला बिट सेंड कर पाएंगे। फाइनली कमिंग टू द जिटर, तो इस पे आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए प्रोसेसिंग डिले। तो अनदर परफॉर्मेंस इशू दैट इज रिलेटेड टू अ सिग्नल और दैट इज रिलेटेड टू डिले इज जिटर। तो वी कैन से कि हर एक पैकेज जो होता है ना वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेता प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, उसे सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगता डिले में। हर एक पैकेट का अपना अपना वे भी हो सकता है डिले होने में या प्रोसेस होने में। तो एवरी पैकेज मीन्स डिफरेंट पैकेट्स ऑफ डेटा एंड दे विल एनकाउंटर सम डिफरेंट डिले। और जो एप्लीकेशन उस डेटा को रिसीव कर रहा है एट द रिसीवर साइड वो टाइम सेंसिटिव हुआ देन दैट कैन बी अ ग्रेट इशू। तो अगर डिले है फर्स्ट पैकेट का 20 मिली सेकेंड, सेकेंड का इज 45 मिली सेकेंड, थर्ड इट इज 40 मिली सेकेंड, देन जो रियल टाइम एप्लीकेशन जो इसे यूज करेगा प्रोसेस करेगा एप्लीकेशन विल एंड्योर सम जिटर। So that's all for today's video. Hope you enjoyed it. If yes, do give this video a thumbs up, like, share and subscribe to this channel.